Hello friends, welcome to my channel. I wish you a very happy new year. And before we move to the predictions for the month of January 23, let us quickly look at how the year of 2023 is going to pan out for you. In any annual prediction, the only thing that matters is the transit of three planets, Saturn, Jupiter, and pair of Rahu and Ketu, because these planets spend a very long time in one particular house and as a result are able to provide or impact your fortune in a much stronger way compared to other fast moving planets. So after April 2023, Jupiter is going to move into your eighth house. So you need to be very cautious about your health in the entire year, especially after April, because this Jupiter in conjunction with Rahu has the ability to give you diseases that are below your waist. So females may face gynecology problems and males will see urine problems, piles and prostate problems if they are in the elder age group. Apart from this, Saturn is going to move into your sixth house on 16th of January, and this Saturn's transit in sixth house will get you engaged in a huge amount of work. Saturn here is going to make you workaholic. It is going to delay your promotion and you will not be able to take any vacation in 2023. On the other hand, as I said earlier, this transit of Jupiter in the 8th house means that you need to pay extra attention to your health. You should avoid eating any kind of a spicy food or oily food. The good part about this transit is that Jupiter is going to aspect your 4th house through its ninth aspect. So if you're planning to buy any kind of a real estate or property, then this Jupiter will help you in acquiring that. The only thing that you need to be careful would be looking at the documents and verifying them thoroughly before purchasing that property. If I have to summarize, then this is an year where work will be your highest priority. You will not find anything else to focus on, but it is the health that you should focus on, and you should avoid taking any kind of a food which is oily or spicy in nature. So two themes arrive for this year. One is the purchase of property and second is looking after your health. Saturn obviously is going to make you workaholic and you will not be able to avoid responsibilities on the job front. So that's the 2023 year for you in summary. Now coming back to the predictions for the month of January 23. In January 23, Ascendant Lord is going to transition through the fourth house. So this is going to be a very good one for you because whenever Ascendant Lord transitions to the fourth, it gives a person peace of mind and domestic happiness. That is what you are going to experience in January. This is also a good time to improve relations with your mother. You will also see arrival of guests at your home during this month, or some kind of a function can take place at your home. You will get an opportunity to meet an impressive personality during this month. Venus is going to be in the fifth house, and Venus is also the owner of the self-earned wealth. So you are going to earn money via your family members or through your speech. The best dates for a substantial cash flow are from 7th, 8th, and 9th of January, but this money is not going to stay with you. You will end up spending this entire money, but the good part is at least you will get some money in this month. Mars is going to remain stationed in the ninth house and is going to aspect its own house, which is the third house. So you will see yourself inclined towards religious activities in this month. If you have a business, then you should make an effort to expand this business in this time frame. And if you have younger siblings, then you can also involve them in your business. Jupiter is the lord of fourth and the seventh house and is passing through its own sign in the seventh house. So people who are unmarried, this Jupiter will continue to provide an opportunity for them to get married till it is sitting here at the beginning of April 23. You will also have a very good time with your spouse in this month. The best dates to have fun with your spouse or partner is between 10th to 12th of January. And this Jupiter here is also giving you an opportunity to start your own business in partnership. Now, Saturn is going to arrive on the sixth house on 16th of January. And as I said earlier, responsibilities will start to increase for you. If you are doing job, then the best day to excel in your job in the month of January are between 10th to 12th of January and 25th to 28th of January. You should also be very cautious not to get into an argument with your peers at the workplace, and you should avoid any kind of a litigations. Saturn is also the owner of the fifth house, and all the students who currently are under that spell of Saturn will see a relief after Saturn migrates from the fifth to the sixth house. So till 16th of January, a lot of hard work and pressure will be on the students
of Virgo ascendant, and after that, pressure will ease out a little bit. People in speculation will also have to wait till Saturn moves to higher degree in Aquarius. So in this month, all the speculators should stay away from the market. Rahu is moving through the eighth house. Not only it is going to give you diseases that are below waist, but it is also going to induce conflicts with the family of your spouse, or alternatively the frustrations with the speech of your spouse. People with Rahu in the 8th and 12th house in their birth chart, they invite problems from outside into their lives. Most of the time, they are responsible for creating chaos in their own lives, especially when things are moving smoothly. So just be very careful about this fact. And when the going is smooth, just enjoy it and not seek something from the outside life. 13th to 24th January is the time frame when you need to be very, very careful. This is also a time when you need to have an intense focus on your health, and you should avoid taking any key decisions during this point of time. You should also need to keep a tab on what you're eating, and you should avoid eating spicy and oily food. So that's the summary for you for the month of January. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसके पहले कि हम लोग देखें कि जनवरी 2023 का महीना आपके लिए कैसे हुआ, एक क्विक नज़र डालते हैं कि साल 2023 आपके लिए कैसे निकलेगा। देखिए, किसी भी साल में खाली तीन ग्रहों के गोचर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक है शनि, दूसरे हैं गुरु, और तीसरे है राहु और केतु की जोड़ी। क्योंकि ये ग्रह एक भाव में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए इनके प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज्यादा होते हैं बजाय बाकी ग्रहों के, जो कि अपने स्थान से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इसीलिए जब भी आप वार्षिक फल देखते हैं तो हमेशा इन ग्रहों का गोचर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अप्रैल 2023 के बाद गुरु आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में चले जाएंगे, और यहाँ पर ये राहु के साथ युति करेंगे, खास करके मई और जून के महीने में। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु, जो अच्छी बात है वो ये है कि अप्रैल 2023 के बाद ये अपनी नवी दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, जो कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का भाव कहलाता है। तो अगर आप कोई भी स्थायी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर मकान दुकान, उसके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन आपको खाली कागजों की तफ्तीश कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये गुरु राहु की जो यहाँ युति बनेगी मई जून के महीने में, उसमें कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ गड़बड़ हो सकती है और आपको फिर प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है। अगर आप कागजों की जांच पड़ताल अच्छे से करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके लिए ये सौदा बहुत फायदे का रहेगा। अब जो नेगेटिव बात है वो ये है कि राहु और गुरु की युति जो चांडाल योग कहलाती है, ये कुछ खास अच्छी युति नहीं है और ये अष्टम भाव में बनेगी। राहु यहाँ पे रह के आपको कमर के नीचे की बीमारियां देता है। तो महिलाओं को गायनोकोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकता है। जितने भी लोग मेल्स हैं उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, पाइल्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी तरह का फ्राइड खाना, तेलीय जिसको खाना बोलते हैं, और स्पाइसी खाना, मिर्च भरा, वो हमें नहीं खाना चाहिए इस समय में। तभी आपको ये राहु थोड़ा बहुत राहत दे सकता है। नहीं तो फिर ये राहु आपके कमर के नीचे के पार्ट में सेंध लगा के कुछ बीमारी खड़ी करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर आपको शनि का भी मूवमेंट है, छठवें भाव में होगा। छठवें भाव से आप सर्विस भी देखते हैं, तो यहाँ पर शनि बैठ के आपके ऊपर अगर नौकरी करते हैं तो बहुत सारा काम लाद देगा पूरे साल भर में। आपके पास ना छुट्टी लेने का कोई अवसर रखेगा, ना आपका कोई ये प्रमोशन वगैरह होने देगा, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ला देगा। तो आप पूरी तरह से काम में डूबे रहेंगे और काम आपकी प्रायोरिटी बन जाएगा। लेकिन आपको जो प्रायोरिटी मेन रखनी है वो आपकी हेल्थ है इस साल में, और जैसा मैंने बताया उन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। गुरु अष्टम भाव में जाने के बाद एक खाली आपको प्रॉपर्टी खरीदने का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नहीं तो इस साल आपको काम भी बहुत करना है और आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अभी अगर हम जनवरी 2023 का प्रोडिक्शन देखते हैं तो जनवरी का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ भाव से निकलेंगे। तो जब भी लग्नेश चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और व्यक्ति के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा समय दिखाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सुखद अनुभव होगा अपने घर पे। घर का माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा, आपके घर पे गेस्ट आ सकते हैं। आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन है तो लोग आज को अटेंड कर सकेंगे गेस्ट आके, और आपको अपनी मदर के साथ भी अच्छा टाइम बिताने को मिलेगा। तो जनवरी का महीना उस लिहाज से बहुत अच्छा है। आपको इस समय में किसी अच्छे व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है जो कि काफ़ी बड़े ओहदे पे है, जो आपकी मदद कर सकता है।
शुक्र पंचम भाव में बैठे रहेंगे, शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय भाव से आप खुद का धन देखते हैं कमाया हुआ। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के थ्रू धन मिल सकता है। जो सबसे अच्छे दिन है जिसमें धन आएगा वो है 7, 8 और 9 जनवरी। लेकिन ये धन आपके पास टिकेगा नहीं और खर्च हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि आपके पास धन आएगा इस महीने में। मंगल 9वें भाव में बैठे रहेंगे। मंगल यहाँ से अपने ही भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को, जो कि प्रयत्नों एफर्ट का भाव है। आपको यहाँ पे कोई रिलीजियस एक्टिविटी में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको ये मंगल की महादशा चल रही है, तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस मंगल के थ्रू। और अगर आपके छोटे भाई बहन भी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का मंगल उस चीज की परमिशन देता है। गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में ही रहेंगे वो जनवरी 2023 में। तो जितने भी लोगों की शादी नहीं हुई है, ये गुरु उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं मार्च के एंड तक। जब तक यहाँ गुरु बैठे हुए हैं तब तक जिनकी शादी नहीं हुई है उनको गोचर में हरी झंडी मिल रही है शादी करने की। इस महीने में आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा आपके पति या पत्नी के साथ। और जो सबसे बेस्ट दिन है जब आप अपने पति पत्नी के साथ टाइम बिता सकते हैं वो तो है 10, 11 और 12 जनवरी। और अगर आप कोई भी नया बिजनेस खोलना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो ये गुरु आपको उसकी भी परमिशन दे रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, शनि 16 जनवरी को छठवें भाव में मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे आते ही आपका काम बढ़ाने लग जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और जो सबसे अच्छे दिन है नौकरी में एक्सेल करने के वो हैं 10, 11, 12 जनवरी। और 25, 26, 27 और 28 जनवरी ये दिन सबसे अच्छे हैं आपको जॉब फ्रंट पे अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और जो भी आपके पीयर्स या कलीग्स हैं वर्क प्लेस पे उनके साथ किसी तरह का झगड़ा मत कीजिए, किसी भी तरह के लिटिगेशंस में इन्वॉल्व मत कीजिए, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। जितने भी छात्र हैं उनके लिए भी शनि का मूवमेंट पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना थोड़ा रिलीफ लाएगा। लेकिन 16 जनवरी तक विद्यार्थियों को भी काफ़ी प्रेशर फील होगा अपनी स्टडीज़ में। जब शनि यहाँ चले जाएंगे तो 16 जनवरी से आपके लिए स्थिति थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू होगी और थोड़ा सा प्रेशर आप पे ईज आउट होगा। उसी तरीके से जितने भी लोग शेयर बाजार से संबंध रखते हैं उनके लिए भी जब तक शनि पंचम में ही बैठे हुए हैं यानी कि 16 जनवरी तक, तब तक तो कोई मतलब नहीं है स्टॉक मार्केट में उतर के। लेकिन इसके बाद भी शनि चूंकि बहुत धीमे मूव करते हैं तो जनवरी के महीने में भी वो इनिशियल डिक्रीज में ही रहेंगे कुंभ राशि के। तो यहाँ पर अच्छा रहेगा कि आप स्पेक्यूलेशन टालें जनवरी के महीने में और शेयर बाजार से आप दूर ही रहें। राहु जैसा मैंने पहले बताया ये बीमारियां देने वाले पोजीशन में है। यहाँ पे आपके अपने पति या पत्नी के परिवार वालों के साथ झगड़े हो सकते हैं, या आपको आपके पति या पत्नी की बोली हुई बातें चुभ सकती हैं। तो यहाँ पर जब भी राहु होता है जिनकी भी जन्म कुंडली में, चाहे वो अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो ऐसे लोग बाहर से समस्या बुलाते हैं। हाँ बैल मुझे मार जिसे हम कहते हैं, ये लोग इनका जिंदगी स्मूथ चल रहा होता है तो भी ये बाहर से समस्या ओढ़ के अंदर लाते हैं। तो ये उस तरह की पोजीशन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो जबरदस्ती कुछ नई चीजें ट्राई करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि ये राहु इसी तरह की चीजों के थ्रू परेशानी लाता है व्यक्ति में। अभी 13 से 24 जनवरी का समय ऐसा है जब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको कोई भी की डिसीजन लेना टालना है। कई बार हमारे ऐसे मेक या ब्रेक टाइप के डिसीजन होते हैं जिसमें अगर आप गलत टाइम पे डिसीजन ले लें तो फिर वो आपके ऊपर बैकफायर होता है। तो ये 13 से 24 जनवरी में कोई भी मुख्य जो आप निर्णय लेना चाहते हैं उसको टालिए, या तो 24 जनवरी के बाद लीजिए या 13 जनवरी के पहले लीजिए। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को भी देखने के लिए मैंने कहा है। जैसा एनुअल ट्रांजिट में मैंने आपको बताया, तो जनवरी से ही वो चीज़ें धीरे धीरे लागू होना शुरू होती हैं। 13 से 24 जनवरी का समय ऐसा भी है जब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।